Okay, so I'd like to request for a short while to just close your eyes, all of you, and just quieten your mind. Thoughts will be going on, but just put them aside for some time. मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने मनों को शांत करें। विचार आते रहेंगे लेकिन अपने मनों को एक जगह पे केंद्रित करें। Experience the quietness. इस शांति को महसूस कीजिए। And now I want you to start using your imagination. और मैं अब चाहता हूँ कि आप अपनी कल्पना को उपयोग में लाएं। Imagine that you're somewhere in a public place. ऐसी कल्पना कीजिए कि आप कहीं एक पब्लिक जगह पे हो And you are by yourself, but there are others around as well. और आप अलग हो, बाकी लोग भी आपके साथ हैं लेकिन आप अलग हो। Now just imagine that you are aware of God's presence. सिर्फ ये कल्पना कीजिए कि आप प्रभु के उपस्थिति के बारे में सचेत हो, कॉन्शियस हो। And you are able to understand one thing at that point, that your body is a vessel. और उस समय आप एक बात समझ पा रहे हो कि आपका जो शरीर है वो एक पात्र है। And now Jesus comes down and enters into your body. और तब यीशु आते हैं और आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। Physically you don't feel any difference. आप शारीरिक तौर पे आपको कुछ बदलाव महसूस नहीं हो रहा है, But you are conscious of His presence. लेकिन आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हो। And there are people around you, as I mentioned. और जैसा मैंने कहा, आपके आजू बाजू लोग भी हैं And some of them notice a change in your appearance. और कुछ लोग देख पा रहे हैं आपका जो चेहरा है वो बदल रहा है। There appears to be some kind of a difference, some kind of a glow in you. एक चमक आपके चेहरे पे उनको दिख रही है And they can't take their eyes off you. और वो अपनी नजरें आपसे हटा नहीं पा रहे, But you are enjoying this presence. लेकिन आप उस उपस्थिति का आनंद उठा रहे हो। And some of the people around you are even curious. और कुछ लोग आपके आजू बाजू जो है वो बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि ये क्या है। One person approaches you एक व्यक्ति आपके पास आता है and starts talking with you. और आपसे बात करने लगता है And you also start speaking with that person. और आप भी उस व्यक्ति से बात करने लगते हो, But you're not speaking out of memory. लेकिन आप आपके विचारों से, यादों से बात नहीं कर रहे हो। You're speaking spontaneously to that person. आप उसी समय डायरेक्टली बात कर रहे हो उस पर्सन से। Spontaneously. I don't know what's the translation. मीन्स उसी समय आपको जो विचार आ रहे हैं उसके द्वारा बात कर रहे हो। And as you start speaking, there are others around who are hearing your conversation and are also drawn to that conversation. और जैसे आप बात कर रहे हो तो आपके आजू बाजू भी जो लोग हैं वो भी उस कॉन्वर्सेशन में, संभाषण में आ रहे हैं, खींचे आ रहे हैं। They also want to hear. वो भी सुनना चाहते हैं। Maybe they want to ask questions. शायद वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, And you continue speaking. लेकिन आप बात करे जा रहे हो। And as you speak, you're experiencing a peace inside of you. और जैसे आप बात कर रहे हो आप एक अलग ही शांति महसूस कर रहे हो अपने अंदर। Because this speech is not out of effort. क्योंकि ये जो आप बातें कर रहे हो ये मेहनत से नहीं आ रही है। You're just speaking spontaneously. आप उस समय आपको जो विचार आ रहे हैं वही लेके आप बात कर रहे हो। And whatever you're speaking is touching the hearts of the person whom you are speaking to. और जो कुछ भी आप बात कर रहे हो वो सुनने वालों के दिलों को छू रहा है। Because your heart can experience it.
क्योंकि आपका हृदय इससे महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है। You're experiencing the peace not only in you, but you're also experiencing the peace in them as they are receiving your words. आप सिर्फ जो शांति है वो आपके अंदर पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि जो वचन आप बोल रहे हो, शब्द आप बोल रहे हो उसके द्वारा। And you feel like as if it's happening without any effort at all from your side. और जैसे आप बोल रहे हो तो आप ऐसे बोल रहे हो कि आपकी ओर से कुछ भी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ रही है। And that peaceful atmosphere is lingering. It's just going on and on. और ये जो शांति का जो वातावरण है वो वैसे ही बढ़ते जा रहा है, वो वही है। You wish that it would never end. आपकी इच्छा है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। And maybe it takes a long time, but finally you come out of it and you have to head back home. और ऐसा भी हो सकता है कि इससे ख़त्म होने के लिए काफ़ी टाइम लगे, लेकिन उसके बाद आप इससे बाहर आते हो। And then you start questioning yourself. और तब आप खुद से सवाल पूछने लगते हो What was it that I experienced? कि ये क्या था जो मैं महसूस कर रहा था, अनुभव कर रहा था। Now you can open your eyes. अब आप अपनी आंखों को खोल सकते हो। What I just shared with you was probably a picture of the spiritual realm. और जब मैंने आपसे जो कुछ अब कहा वो एक चित्र था आत्मिक दुनिया का, Where you were in touch with the spiritual realm. जहाँ पे आप आत्मिक जगत से जुड़े हुए थे। So I want to say this, that about 22 years ago I had no knowledge of the spiritual realm. और मैं कहना चाहूँगा कि 20 से 22 साल पहले मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था आत्मिक जगत के बारे में। So whatever I had to think and question, it was all confined within the physical realm. इसी वजह से जो कुछ भी मैं पूछता था या समझता था वो इसी दुनिया में सीमित था, इसी में लिमिटेड था। I had no awareness also of the spiritual realm. मुझे आत्मिक जगत का कुछ अनुभव नहीं था, महसूस नहीं कर पाता था मैं। But I had an experience about 20 years ago लेकिन मैंने एक अनुभव किया 22 साल पहले, that it was something I find it difficult to describe in words. जो मैं अगर आपको बताने जाऊँ तो शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। But basically, to tell you, I was experiencing, I had a pain in my back. मैं आपको बताऊं तो मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, For which I had gone to the doctors उसके लिए मैं डॉक्टर के पास भी गया several times, बहुत बार, and there was, it seemed like there was no cure, और ऐसा लग रहा था कि इसका इलाज ही नहीं हो सकता है, because they were injecting me with painkillers. क्योंकि वो मुझे इंजेक्शन दे रहे थे पेन किलर वाले। This went on for more than 3 months. ये 3 महीनों तक चला। Initially, it was like just about an hour in a day. पहले ये ऐसा था कि दिन में सिर्फ 1 घंटा ही होता था, But towards the end of the second month, लेकिन दूसरा महीना ख़त्म होते होते it used to last for half a day. ये दर्द आधा दिन तक चलता था। But by the third month, it was there from morning to evening. लेकिन जब तीसरा महीना आया तब ये जो दर्द था ये पूरा दिन चलता था, सुबह से शाम तक। Now, the worst part of this pain was, इस दर्द की सबसे बुरी बात ये थी no position was comfortable for me. कि मैं किसी भी स्थिति में कंफर्टेबली बैठ नहीं पाता था। If I would sit or if I would sleep or even if I would stand, it was not comfortable for me. अगर मैं बैठ रहा हूँ, लेट रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, कोई भी पोजीशन मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं थी। Because it was not just an external pain. क्योंकि ये सिर्फ बाहरी दर्द नहीं था। But I couldn't explain it, nor could the doctors explain it to me. तो ये मैं भी बता नहीं पा रहा था और डॉक्टर भी मुझे बता नहीं पा रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। And it was so uncomfortable that I could not be in one place. So I used to keep moving around the room wherever I was. और ये बहुत अनकंफर्टेबल था मेरे लिए, इसलिए मैं बार बार उसी कमरे में घूमता रहता था। If I would try to sit down, अगर मैं बैठने की कोशिश करूं, within 2 minutes I'd get tired of sitting because the pain was making me to get up and again walk. तो 2 मिनट में ही मुझे वो दर्द इतना बढ़ जाता था कि मुझे उठना ही पड़ता था और वापस चलना पड़ता था।
sometimes when I would try to sleep, जब मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ again within 5 minutes I would want to get up and again walk around. तो सोने के बाद भी 5 मिनट में ऐसा होता था कि मुझे लगता था आज मुझे उठ के चलना चाहिए, बहुत दर्द हो रहा है। So no position was comfortable for me. तो कोई भी पोजीशन मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं थी, सही नहीं थी। And I frequently was visiting the doctors और मैं डॉक्टर के पास बहुत बार जाता था and taking those injected painkillers. और मैं जाके सिर्फ वो इंजेक्शन से दिए हुए पेन किलर ले लेता था। The doctors could not explain the cause or why this is happening in my body. कि डॉक्टर बता नहीं पा रहे थे कारण कि ये क्यों हो रहा है मेरे शरीर में। So I felt like I'm going to have to live with this kind of a pain. तो मुझे लगा कि मुझे इस दर्द के साथ ही जीना पड़ेगा। And this is when I began to cry out to God. और इसी बात पे मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू की I said that I can't live my life like this with this kind of a pain every day of my life. कि प्रभु मैं इस दर्द को लेके पूरा जिंदगी नहीं जी सकता। And that's when I opened my heart to God. और उसी समय मैंने मेरे हृदय को खोला परमेश्वर के लिए। Now at that time I was taught about God through religion. तो उस समय मुझे परमेश्वर के बारे में सिखाया गया था धार्मिक रीति से, But I had no relationship with God. लेकिन मेरा प्रभु के साथ परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं था। So whatever I knew was head knowledge तो जो कुछ मुझे पता था वो एक सिर्फ सर में भरा हुआ ज्ञान था and no experience at all. और कोई भी अनुभव नहीं था। So when I was crying out to God, और जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था I said that God, if you exist, then prove it to me and heal me from this pain. तो मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अगर तू सच में है तो साबित कर और मुझे चंगा कर दे। And until that point of time, I did not even believe in healing. और उस समय तक मैंने इस बात में विश्वास भी नहीं किया था कि चंगाई ऐसे हो सकती है, Healing by God. कि चंगाई परमेश्वर कर सकता है। So I used to believe that if someone gets all right, it's because of some physical thing that has happened in that person's body, like some chemicals through the medicines have worked into the body and healed that person. तो तब मेरा विश्वास ये था कि अगर किसी को कुछ अगर वो ठीक हो भी जाता है तो इसीलिए होता है कि दवाई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा उनके शरीर में कुछ केमिकल छोड़े जाते हैं और वो काम करते हैं और उसके द्वारा वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। Because we can't see healing, क्योंकि हम चंगाई को देख नहीं पाते, so I didn't believe in it. इसलिए मैं विश्वास ही नहीं करता था। But now I was asking God to heal me. और अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे चंगा कर दे। Because I heard people saying that they got healed by God. क्योंकि मैंने लोगों से सुना था कि वो परमेश्वर के द्वारा चंगे हो गए थे। So it became the perfect test for me that if I want to continue believing in God, then I need to see a healing first. तो इसलिए मेरा ये एक टेस्ट बन गया कि अगर मुझे परमेश्वर में विश्वास करना है तो मुझे चंगा होना होगा। If I experience this healing, then I will give my full heart to God. अगर ये चंगाई हो जाती है, मैं ठीक हो जाता हूँ, तो मैं मेरा पूरा हृदय परमेश्वर को दूंगा, उसमें विश्वास करूंगा। When I made that prayer, जब मैंने प्रार्थना की, I had actually gone to a place where we were having a spiritual retreat for 3 days. तो जब मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे एक रिट्रीट जैसा मीटिंग हो रहा था 3 दिन का। And over there, I had made this prayer that God, prove yourself to me, heal me. और उस मीटिंग में मैंने प्रार्थना किया था कि परमेश्वर अगर तू है तो मुझे ठीक कर दे। And at that point when I was praying, I was having the pain in my back very severely. और जब मैं वहाँ पे था तो मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। I was uncomfortable. I knew that I can't just stand in one place. I have to move around. तो जैसे कि मैं अनकंफर्टेबल था कोई भी पोजीशन में, तो मुझे पता था मुझे सिर्फ चलते रहना है, एक जगह पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। But anyway, when I made that prayer, there was a praise and worship going on. तो जब मैंने प्रार्थना की तब स्तुति आराधना चल रही थी वहाँ पे। So my mind got into that praise and worship. तो मेरा जो मन था वो स्तुति आराधना में पूरा खो गया। And I was lost in it. तो मैं उसमें पूरी तरह से खो गया था। Partly because I wanted to surrender myself and forget this pain. ये इसलिए भी था कि मुझे उसमें खो जाना था और इस दर्द को भूलना था। Because I knew that the next few moments will be uncomfortable and then I'll have to slip out and just keep walking around. क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो अगले कुछ मिनटों में मुझे वापस दर्द होगा, वापस वही चालू हो जाएगा। So I made this prayer and I asked God to come in and heal me.
तो इसलिए मैंने प्रार्थना की और मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर दे। The praise and worship lasted for about 30 minutes. तो ये जो स्तुति आराधना थी वो 30 मिनट तक चली। At the end of the praise and worship, it's not like it abruptly ended, but it ended very nicely. तो 30 मिनट बाद ये स्तुति आराधना जो थी वो खत्म हुई। And a person came onto the mic तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने माइक लिया हाथ में, and he immediately said somebody's back pain got healed. तो उन्होंने आते ही कहा कि यहाँ पे कोई है जिनका पीठ का दर्द है वो ठीक हो गया है। Now, who was that person? Even I did not know, and nobody knew about I had not shared about my pain. तो वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मुझे पीठ दर्द हो रहा है, तो मुझे भी नहीं पता था। But I remembered that my back was paining when we started the praise and worship. तो मुझे उस समय याद आया कि अरे मेरी पीठ तो दर्द हो रही थी 30 मिनट पहले। And I checked and I saw there was no pain. और मैंने जब चेक किया तो मुझे महसूस हुआ कि अरे अब दर्द नहीं हो रहा है। So I immediately stood up and I said, I'm the one. I got healed from the pain. तो उसी समय मैं खड़ा हो गया और मैंने हाथ उठा के कहा कि मैं ही हूँ जो ठीक हो गया हूँ पीठ के दर्द से। So they called me to the mic and they asked me to testify. तो उन्होंने मुझे आगे बुलाया और कहा कि आप अपने गवाही दो। So I went to the mic and I told them that for the last 3 months I've been experiencing this pain in my body. तो मैंने उनसे कहा कि ये 3 महीने से चल रहा है जो मैं बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा हूँ। And by this time I started to get fed up of this pain. और अब मैं तंग आ गया था इस दर्द से। And I had prayed to God to heal me. और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे आप ठीक कर दो। And that day I confessed that my pain is gone and God has healed me. और उस दिन मैंने गवाही दी, कन्फेस किया कि मेरा पीठ दर्द ठीक हो गया है और चला गया है। Immediately I realized I started believing in healing. तो उस समय से, उस क्षण से मैं चंगाई में विश्वास करने लग गया। I knew that I was not believing in her healing earlier, but from that moment onwards I believed that I was healed. तो उस समय से पहले मैं चंगाई में विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं कर रहा था क्योंकि मैं खुद चंगा हो गया हूँ। But what really greater thing that happened was that night as I went to sleep, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जब रात को मैं सोने गया I experienced a sensation in my body. तो मैंने मेरे शरीर में एक महसूस किया, सेंसेशन महसूस किया। It was not a physical sensation. ये एक शारीरिक भावना, फीलिंग नहीं थी, It was something spiritual. ये आत्मिक अनुभव था। Initially, because it was the first time I was experiencing, I thought it was the pain that came again. तो ये क्योंकि मेरे साथ ये जीवन में पहली बार हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये दर्द वापस तो नहीं हो रहा है। It was a sort of a burning sensation, तो एक गरम, ऐसे एक जलता हुआ एक अनुभव मुझे हो रहा था, but it was not painful at all. लेकिन ये दर्दनाक नहीं था। It was very peacefully moving in my body. लेकिन ये बहुत शांति से मेरे शरीर में मुझे महसूस हो रहा था। I could feel the pain move through the inside of my body, moving all around this part. तो मुझे ये जो गरम जो फीलिंग था वो मेरे शरीर में पूरी तरह से महसूस हो पा रहा था, बहुत अलग अलग जगह पे। I did not know how to respond to that. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस पे मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। In fact, my mind was also confused. What is happening in my body? मैं खुद भी, मेरा मन भी कंफ्यूज हो रहा था कि अरे ये क्या नया हो रहा है मेरे साथ। But I recalled that few hours ago I had testified that God has healed me. लेकिन मुझे याद आया कि कुछ घंटों पहले ही मैंने गवाही दी थी कि परमेश्वर ने मुझे ठीक कर दिया है। So I continued to stay truthful to that confession. तो मैंने उस गवाही के साथ उस पे ही मैं खड़ा रहा। And I said, I believe that I am already healed, and whatever is happening right now is maybe something which I cannot understand. मैंने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं पूरी तरह से चंगा हो गया हूँ, लेकिन ये जो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। Now today when I tell you this, जब अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, I still don't have an explanation as to what was that feeling. तो आज तक मुझे पता नहीं है कि वो जो फीलिंग मेरे साथ हो रही थी वो क्या थी। But I take it this way. लेकिन मैं उसे इस तरह से लेता हूँ, I continued my confession that I was healed, मैंने उस कबूली को वैसे ही रखा कि मैं चंगा हो गया हूँ, and that was the completion of my healing. और वही मेरे चंगाई का पूर्णत्व था कि तब मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। Since that day till today I have never had that pain again. उस दिन से आज तक वो दर्द कभी वापस नहीं आया। So truly it was a first time experience of
healing, तो वो मेरे साथ पहली बार चंगाई का अनुभव था, but it also opened my eyes to the spiritual realm. लेकिन उस दिन से मेरी आंखें आत्मिक जगत के लिए खुल गई। Now, I told you that I had zero knowledge about the spiritual realm. तो मैंने आपसे कहा कि मुझे आत्मिक जगत का कोई भी ज्ञान नहीं था। So, when I woke up in the morning, तो जब मैं सुबह उठा, I was just thanking God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा था, And now I was hungry, और अब मुझे भूख लगी थी। not physical hunger, शरीर को भूख नहीं लगी थी, spiritual hunger, आत्मिक भूख लगी थी, because I was delivered from that pain. क्योंकि मैं उस दर्द से आज़ाद हो गया था। Now I wanted to know, how does this all work? तो मुझे पता करना था कि अरे यार ये होता कैसे है? How does physical things get healed? This is the first time it happened in my body. तो मुझे जानना था कि ये जो शारीरिक बीमारी है ये ठीक कैसे हुई, मुझे जानना था कैसे होता है। So I set myself up onto a track where I am going to find out about God and about the spiritual realm. तो मैंने खुद को इस तरह से तैयार किया कि मुझे अब परमेश्वर के बारे में जानना है, वो कौन है, मुझे ये जानना है। Of course, I did not have friends or relatives who could explain to me what I experienced. और मेरे पास दोस्त या रिश्तेदार नहीं थे जो मुझे समझा पाए कि ये जो हुआ मेरे साथ वो क्या था। Nor did I have anyone to share their experiences of the spiritual realm with me. और मैं किसी को जानता भी नहीं था कि जो मुझे इसके बारे में समझा सके कि ये क्या होता है। So the obvious thing that I would do is go and ask people, whoever I knew. तो ये जाहिर था कि मुझे अगर जानना है ये कैसे होता है तो मैं जाके लोगों को पूछने लग गया। So I used to ask my neighbors or people whom I used to meet at church. I used to ask them about how things work like with God. तो मैंने मेरे जो पड़ोसी थे या चर्च के जो लोग थे उनको पूछने लगा कि अरे यार ये मेरे साथ हुआ है, ये कैसे होता है, क्यों होता है। And I got different kinds of responses from different people. और मुझे अलग अलग उत्तर मिले अलग अलग लोगों से। It made me more confused. उससे मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। Because I didn't know if one person was saying about this end, then another person was talking about the other extreme. क्योंकि सबके जवाब अलग अलग थे। कुछ लोग बोल रहे थे ये इसकी वजह से होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये इसकी वजह से होता है। And my mind was not settled on any of those things. और मेरा जो मन था वो किसी एक जवाब पे ठहर नहीं पा रहा था। And I was more hungry actually. और मैं और ज़्यादा मुझे भूख लगी थी जानने की। So I said that I'm done talking to people and asking their experiences. I want to know from you, God. I started talking to God. तो मैंने ये ठान लिया उस दिन से कि मैंने लोगों से बात कर ली है, मुझे लोगों से नहीं जानना कि ये कैसे होता है। अब मैं प्रभु से जानूंगा, उससे पूछूंगा कि ये कैसे होता है। So whatever I knew, that was the method that I tried. तो जो कुछ भी तरीका था मुझे पता था कि ऐसे करना है, वो मैंने ट्राई किया। So I used to wake up early in the morning and talk to God. तो मैं सुबह उठता था बहुत जल्दी और परमेश्वर से बातें करता था। And I used to say that, see, I want to understand about this, like how healing works, or how we can experience peace, like even if you have done a lot of hard work, how I can experience rest. तो मैं सुबह उठ के प्रभु से ये पूछता था परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं ये चंगाई कैसे काम करती है, शांति कैसे मिलती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं सही मायने में मेरे आराम कैसे पाऊँ, विश्राम कैसे पाऊँ। And all of these questions I was asking God, and again I was actually doing it mentally. और ये सारे सवाल मैं प्रभु से पूछ रहा था, लेकिन सब मैं ये मेंटल लेवल पे कर रहा था, मानसिक तौर पे कर रहा था। So through my thoughts I was speaking to God, and I was expecting an answer from God also into my thoughts. तो मैं विचारों में परमेश्वर से बात कर रहा हूँ और मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि परमेश्वर भी मुझसे विचारों में उत्तर देगा। But I was not hearing anything. लेकिन मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था। I felt like I was talking to God, but I'm not getting an answer. मुझे लगा मैं परमेश्वर से बात तो कर रहा हूँ लेकिन परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहे। So this continued for several years. तो ये बहुत सालों तक चला। But I never gave up talking to God. लेकिन मैंने परमेश्वर से बात करना नहीं छोड़ा। I made it a point that at least I would spend 1 hour with God, because I experienced God. So I'll spend 1 hour with God every day. Even if I get up late, I have to go to work late, it doesn't matter. But I'll spend that 1 hour with God. मैंने ठान लिया था कि मैं रोज़ाना 1 घंटा परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा, उनसे बातें करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं ये 1 घंटा तो ज़रूर दूंगा। And that is how those few years passed. और ऐसे ही कुछ साल बीते।
that hunger in me was growing actually. तो ये जो भूख था मेरे अंदर परमेश्वर को जानने का, वो बढ़ता गया. I wanted to know, like, why things happen, how things from the spiritual realm happen. मैं जानना चाहता था कि ये चीज़ें कैसी होती है, आत्मिक जगत से शारीरिक जगत में चीज़ें कैसे प्रकट होती है. In this meantime, I began to understand that God's word is very important in our lives. तो उसी दौरान मैं ये बात समझ गया कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है. So I started reading the Bible. तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया. And as I was reading, yes, I was interested in reading the Bible, but I was not understanding everything. तो जैसे मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ. And some things what people told me was not matching with what I was reading in the Bible. और जो भी बातें, जो भी जवाब लोगों ने मुझे दिए थे कि ये क्यों होता है, वो जवाब बाइबल में कहीं पे भी नहीं थे, उससे मैच नहीं हो रहे थे. So then my conversation with God began changing. तो मेरा जो प्रभु से बातचीत था वो बदलना शुरू हुआ. Now instead of trying to ask God about how healing takes place, I was talking to God and asking him, what does this word mean? What does this verse mean? तो प्रभु से पूछने का तरीका मेरा बदल गया. मैंने प्रभु से पूछना शुरू किया कि प्रभु ये क्या है, ये कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है. I began to ask God for understanding of his word. मैंने प्रभु से ये मांगना शुरू किया कि प्रभु मुझे तेरे वचन की समझ चाहिए. And as I did that, तो जब मैंने किया, slowly I began to start feeling something in my heart. तो जैसे मैंने ये पूछना शुरू किया तो मेरे दिल में मैंने एक महसूस करना शुरू किया. Like as I mentioned to you, there was that hunger to know. तो जैसा मैंने कहा कि मेरे अंदर एक भूख शुरू हुई थी परमेश्वर को जानने की. And I felt like as if God is leading me somewhere, but I couldn't make out where. तो मुझे महसूस हो रहा था कि परमेश्वर मुझे चला रहा है किसी दिशा में, लेकिन कहाँ चला रहा है वो मुझे नहीं पता था. So that is when God put it into my heart one of the days, said that go to this place, you will learn about my word, you will understand my word. तो एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की और उसने कहा कि इस जगह पे चला जा, यहाँ पे जाने से तू मेरे बारे में जान पाएगा, मेरे वचन के बारे में जान पाएगा. And that is where the Lord directed me to go to Chennai. और तभी प्रभु ने मुझे चलाया कि मैं चेन्नई जाऊँ. And to a Bible college in Chennai. तो चेन्नई में एक बाइबल कॉलेज था, वहाँ पे मुझे जाने के लिए प्रभु ने कहा. So I went to Charis Bible College. तो मैं कैरिस बाइबल कॉलेज गया. And began to listen to the word of God. और मैं वहाँ जाके परमेश्वर के वचन को सुनने लगा. And listen to teachings on the word of God. तो प्रभु के वचन की जो शिक्षाएं थी उन्हें मैं सुनने लगा. So the first thing that really opened my mind was तो एक पहली बात जो थी उसने मेरे मन को खोला, the teaching of spirit, soul and body. तो वो शिक्षा थी आत्मा, शरीर और प्राण के बारे में. So for those who do not know, we are made up of 3 parts. तो वो लोग जो नहीं जानते, हम 3 भागों में बने हुए हैं. One is our physical body, एक है हमारा शरीर, one is the soul, एक है हमारा प्राण. that is talking about our mind, our conscience and our character. वो हमारे मन को, हमारे विवेक को, हमारे चरित्र को दिखाता है. That is totally our personality. वो हमारा एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है. And the third part is a spirit. और तीसरा जो भाग होता है वो होता है हमारी आत्मा. So I never knew difference between what is soul and what is body. I used to think they are one things. मुझे पहले इन तीनों में मतलब नहीं पता था, मुझे लगता था सब एक ही है. But I clearly began to understand what is soul and what is spirit. तो मैं तब जानने लग गया कि आत्मा क्या है और प्राण क्या है और आत्मा क्या है. And as I began to understand spirit, soul and body, तो जब मैंने आत्मा, शरीर, प्राण के बारे में जानना शुरू किया, my eyes began to open into the spiritual realm. तो मेरी जो आंखें हैं वो आत्मिक जगत के लिए खुलने लग गई. Now I want to say one thing over here. मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा. We all have an imagination. हम सबके पास एक कल्पना है. So even before I had gone to Chennai, तो मैं चेन्नई को जाने से पहले I was aware that I have an imagination, मुझे पता था कि मैं कल्पना कर सकता हूँ, but my imagination was restricted to the physical realm.
लेकिन जो मेरी कल्पना थी वो इसी जगत के लिए सीमित थी, मैं यहाँ का ही कल्पना कर पाता था, because I had no understanding of the spiritual realm. क्योंकि मुझे आत्मिक जगत के बारे में कुछ पता ही नहीं था. So I said, I began to understand that I need to let my imagination get into the spiritual realm. तो मैं समझ पा रहा था कि मुझे मेरी कल्पना को आत्मिक जगत में ले जाना बहुत ज़रूरी है. That is what it is called as opening your eyes opening your spiritual eyes. इसे ही कहते हैं हमारी आत्मिक आंखों को खोलना. When you open your spiritual eyes, जब आप अपनी आत्मिक आंखों को खोलते हो, you are seeing spiritual things. तब जाके आप आत्मिक जगत की बातें, चीज़ें देख पाते हो. With the physical eyes, you cannot see that. हमारी शरीर की आंखों से आप ये चीज़ें नहीं देख पाते. You need spiritual eyes to see the spiritual realm. आपको आत्मिक आंखों की जरूरत है आत्मिक चीज़ों को देखने के लिए. So until then, my spiritual eyes were closed, but now it began to open. तो अब तक मेरी आत्मिक आंखें बंद थी, लेकिन अब मेरी आत्मिक आंखें खुल गई थी. And now I knew that whatever hunger that was there in me is going to get satisfied. और तब मुझे महसूस हुआ कि जो भी आत्मिक भूख मेरे अंदर शुरू हुई थी वो अब तृप्त होने वाली थी. Because those days that I spent in Chennai, क्योंकि वो जो दिन मैंने चेन्नई में बिताए, those days felt like a honeymoon with God. उन दिनों को मैंने परमेश्वर के साथ एक बहुत अच्छा समय, हनीमून समय जैसा समझा. And that was so beautiful because there was no condemnation. और वो समय इसलिए खूबसूरत था कि वहाँ पे कोई दंड नहीं दे रहा था मुझे. There was a lot of wrong understanding inside of me, but God didn't condemn me for that. मेरे अंदर बहुत सारी गलत बातें थी, गलत विचार थे, गलत तरह से गलत समझ थी मेरे अंदर, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने मुझे कभी भी बुरा नहीं कहा, दंडित नहीं किया. There was a lot of misinterpretation of God's word in my life, which I began to understand, and God didn't condemn me for that. प्रभु के वचन का गलत मतलब भी मेरे मन में था, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर ने मुझे दंडित नहीं किया. He made it so beautiful for me that it was very peaceful and full of grace. उन्होंने उस बात को इतना सुंदरता से मुझे समझाया अपने अनुग्रह के द्वारा. I truly experienced the grace of God at that time. मैंने सच में प्रभु के अनुग्रह को महसूस किया उन समय में. That's when I and Sylvia, we both decided that if we have a child, we'll name, and if it's a girl, then we'll name her Grace. और तब हमने डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरी पत्नी सिल्विया और मैंने डिसाइड किया था कि अगर हमें बेटी होती है तो हम उसका नाम ग्रेस रखेंगे, जिसका मतलब होता है अनुग्रह. And that's why our child is called Grace. और इसलिए ग्रेस का नाम ग्रेस है. And so, because I started to open my eyes into the spiritual realm, और इसी वजह से जैसे मैंने अपनी आत्मिक आंखों को खोलना शुरू किया, I had all these questions, right? तो मेरे पास जो सवाल थे, I said now is the time for me to seek the answers to these questions. तो मुझे समझा कि अब सही समय है इन सवालों का जवाब ढूंढने का. So God again pointed me back to His word. तो प्रभु ने वापस मुझे अपने वचन की ओर डायरेक्ट किया. So I did finish the entire Bible course and we came back to Pune. तो मैंने चेन्नई में जो बाइबल कॉलेज का कोर्स था वो पूरा किया और मैं वापस पुणे आ गया. I had to leave my job, remember, to get into this Bible college. तो बाइबल कॉलेज जाने के लिए मुझे मेरी नौकरी छोड़नी पड़ी. But I had faith that God He will provide for me. लेकिन मुझे विश्वास था कि प्रभु मेरा पुरौठा करेगा, मुझे जो कोई चीज़ की ज़रूरत है सब प्रभु देगा. And I had said at that time that after I come back, I'll again join my job. और तब मैंने बोला था कि जब मैं वापस आऊँगा मैं वापस नौकरी ज्वाइन कर लूँगा. So when I came back to Pune, तो जब मैं पुणे वापस आया, I said, God, I'm ready to go back to work. तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं अब नौकरी वापस जाने के लिए तैयार हूँ. But I heard a voice, लेकिन मैंने एक आवाज़ सुनी and that voice told me no. और उस आवाज़ ने कहा नहीं. So I was not supposed to go back to work. तो मुझे काम पे वापस नहीं जाना था. So I was wondering then what should I do? तो मैं सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं. So God told me to continue meditating on His word. तो प्रभु ने मुझसे कहा कि तू मेरे वचन पे मनन करना शुरू रख. And that is when I knew that I wanted to get all those answers, so I had to spend time with God's word. तो मुझे पता था कि अगर मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो मुझे प्रभु के साथ समय बिताना होगा. And one more year I spent without going to work and just meditating on God's word. तो एक साल मैंने ऐसे ही बिताया
प्रभु के वचन पे मनन करते हुए मैंने उस साल नौकरी नहीं की। So 2 years I didn't work. तो 2 साल मैंने नौकरी नहीं की। But these were the 2 years where amazing transformations happened. लेकिन इसी 2 सालों में सबसे बड़े बदलाव हुए मेरे जीवन में। Within these 2 years, God made me debt free. तो इन 2 सालों में प्रभु ने मुझे कर्जे से मुक्त कर दिया, मेरा कर्जा खत्म हो गया। I no longer had any loans to pay, मेरे ऊपर एक भी कर्जा नहीं था and I was very healthy, और मैं अच्छी सेहत में था and also I was peaceful, I was at rest. और मैं अलग ही शांति महसूस कर रहा था, मैं पूरी तरह से विश्राम में जी रहा था। Also, I noticed my personality was a little changed. और मैंने ये भी महसूस किया कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी बदल गई थी। Because earlier, like 5 years earlier, if anyone would talk about God, I would run away from that place. क्योंकि 5 साल पहले ऐसे था कि अगर कोई मुझसे परमेश्वर के बारे में बात करता था तो मैं वहाँ से भाग जाता था। But now it became such that if anyone talked about God, I wanted to be included in the conversation. लेकिन अब ऐसा हो गया था कि अगर कोई परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है तो मैं चाहता था कि मैं भी बात करूँ उसमें। And that zeal that God put for me to talk about Him, to talk about God to others, that increased. और प्रभु ने जो एक इच्छा डाली थी मेरे अंदर कि मैं उसके बारे में बात करूं तो वो बढ़ती जा रही थी। And because of that, I began to meet people. और उसकी वजह से मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। I went to almost all of my neighbors whom I knew well to their houses. और मैं हमारे सारे पड़ोसियों के पास गया जिनको मैं जानता था, उन सबके घरों में मैं गया। I used to tell them about what I learned from the Bible college. तो मैं उनको बताता था कि मैंने बाइबल कॉलेज जाके क्या सीखा वहाँ से। And at the end of that meeting, I would pray for them. और उस वहाँ पे वो सब होने के बाद मैं उनके लिए प्रार्थना करने लग गया। What I noticed was every time I prayed, there was some kind of healing taking place. और मैंने ये महसूस किया, मैंने ये देखा कि जहाँ जहाँ जाके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वहाँ पे चंगाई हो रही है, लोग ठीक हो रहे थे। People were getting healed of headaches, toothaches. लोगों के सर दर्द ठीक हो रहे थे, दांत के दर्द ठीक हो रहे थे, Even fever and cold. बुखार था, सर्दी थी, ये सारी बातें ठीक हो रही थी। I noticed each person's house I went to at that time, somebody was getting healed. तो मैंने महसूस किया कि हर घर में मैं जा रहा था वहाँ पे लोग चंगे हो रहे थे, ठीक हो रहे थे। And that was exactly my hunger, that I wanted to operate in this spiritual realm. और वही मेरी भूख थी आत्मिक जगत के लिए कि मुझे चंगाई में काम करना है। And as I began to try it out, I tried it out in small steps, I will say, that like simple fever, cold, those are the things I would pray for. तो पहले मैंने शुरुआत छोटी की, तो मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता था जिनको सिर्फ बुखार है, सर्दी है। And I saw that they were getting healed instantly. और मैंने देखा कि वो उसी समय ठीक हो रहे थे। There were some cases later on where they would get healed later. कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस समय ठीक नहीं हुए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ठीक होते थे। But my mind was set that I need to operate in this realm. लेकिन मेरा मन उस बात पे अड़ गया था कि मुझे इस काम में, इस जगत में जीना है। And that is how I started operating in faith. और ऐसे ही मैं विश्वास में चलने लग गया। So for me, when a person gets healed, that is not when I start believing in the healing. तो मेरे लिए चंगाई में विश्वास करना ये नहीं है कि जब वो व्यक्ति चंगा हो गया उसके बाद मैं विश्वास नहीं करता हूँ। But when I speak it out, when the words come out of my mouth, that is the time I believe that it is done. तो जिस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बोलता हूँ शब्दों को, तो उसी समय मैं विश्वास करता हूँ कि ये हो गया है और वो हो जाता है। I want to explain this one thing about instant believing. तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उसी समय विश्वास करके हमें रिजल्ट कैसे देखने हैं। So few years earlier, that is before going to the Bible college, कुछ साल पहले बाइबल कॉलेज जाने से पहले I had a pain in my palm. मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। So right palm and right in the center of the palm. मेरी दाहिने हाथ की हथेली के बीच में दर्द हो रहा था। And it was a very painful pain. और ये बहुत दर्दनाक था। To such an extent that if I had to pick up a thick book, heavy book, तो ये इतना दर्दनाक था कि अगर मुझे मोटी किताब उठानी है I would not be able to do that तो मैं उसे उठा नहीं पाता था, because the pain was too much for me. क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। So I had gone at that time to a retreat, तो मैं उस समय एक रिट्रीट में गया था। and
people prayed for me for that pain, और लोग वहाँ पे उस दर्द के लिए प्रार्थना कर रहे थे मेरे लिए, and I was told that I'm healed, और मुझे बताया गया था कि आप चंगे हो गए हो, ठीक हो गए हो, but I could still feel the pain. लेकिन दर्द फिर भी महसूस हो रहा था. So those questions arised at that time, तो वो सवाल मेरे मन में आ रहे थे, that am I healed, or but I can still feel the pain. मैं चंगा हो गया हूँ लेकिन दर्द अभी भी हो रहा है, So what is the truth? Should I believe this or that? तो सच क्या है, मैं चंगा हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, किस पे विश्वास करना है. So I used to go to that person back and say that why am I experiencing the pain if I'm healed? तो जिसने मुझे बताया कि आप चंगे हो गए हो, तो मैं उनके पास जाके वापस पूछने लगा कि अगर मैं चंगा हो गया हूँ तो दर्द क्यों हो रहा है. I didn't get satisfactory answer. तो मुझे अच्छा जवाब नहीं मिला. That is the reason why the confusion built up even more in my head. इसीलिए वो जो कन्फ्यूजन था मेरे मन में वो और बढ़ता गया. But now that I had received understanding from God's word, लेकिन जब अब मुझे परमेश्वर के वचन से मुझे ज्ञान मिला है, so I said to myself, I will not tolerate any kind of pain. तो मैंने ठान लिया कि मैं किसी भी प्रकार के दर्द को महसूस टॉलरेट नहीं करूँगा, सहन नहीं करूँगा, Because that is not God's will for me, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है that I should be living my life in pain. कि मैं अपना जीवन दर्द में बिताऊं. So one of the days when I remember I was trying to open a very small bottle. तो एक दिन मुझे याद है मैं बहुत छोटी बॉटल खोलने की कोशिश कर रहा था. It was a small oil bottle, I think, एक छोटी सी तेल की बॉटल थी and it was a glass bottle, और वो कांच की बॉटल थी, and the cover was too tight. और जो उसका कवर था वो बहुत टाइट था. So I had to put force to open the cover, तो मुझे बहुत जोर लगा के वो खोलना पड़ा, and I think I put too much force. और कुछ ज़्यादा ही मैंने जोर लगाया वहाँ पे. So I was able to open the cover, तो मैंने वो कवर खोल दिया, but because of the extra force, the neck of that small glass bottle crushed in my hand. लेकिन वो जो छोटी कांच की बोतल थी, ज़्यादा जोर लगाने की वजह से वो जो उसका ऊपरी भाग था वो टूट गया और कांच टूट गया. And those glass pieces entered into my finger. और वो जो कांच के टुकड़े थे मेरे उंगली में घुस गए And immediately I was bleeding from my finger. और खून आना शुरू हुआ It was dripping. और खून बह रहा था. And immediately I remembered that I am not supposed to be in this pain. और मुझे तब याद आया कि मुझे इस दर्द में रहने की ज़रूरत नहीं है. Even though I have made a mistake and even though I have crushed the neck of this bottle and glass pieces are inside my flesh, but yet I am not supposed to experience this pain. ये मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से ये कांच टूटा है, मेरे उंगलियों में गया है, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे इस सब के बावजूद मुझे दर्द को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है. So I did two things. तो मैंने दो बातें की. The first thing that I did is because it was bleeding, पहली बात मैंने की क्योंकि खून बह रहा था, I applied some turmeric, haldi, तो मैंने थोड़ी हल्दी लगाई उसके ऊपर, okay? And then I started declaring. और उसके बाद मैंने घोषणा करना शुरू किया. I spoke as if I was speaking to a person. और मैंने ऐसे बात की मेरे उंगली से जैसे कि मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ. I said, pain, you will get out of my finger right now, this instant. कि दर्द मेरी उंगली से तू अब भी निकल जा, And skin, you will be healed. और मेरी त्वचा जो है तू अभी ठीक हो जा. I said this, और मैंने ये कहा, and within 2 minutes, there was no pain. और 2 मिनट में वो पूरा दर्द रुक गया. I was still removing the glass pieces from my flesh, और मैं अभी भी वो कांच के टुकड़े निकाल रहा हूँ अपनी उंगली से, but the pain had gone. लेकिन दर्द नहीं हो रहा है. And as I removed all the pieces and I washed it and again applied some more haldi, और जब मैंने वो कांच के टुकड़े निकाले, उससे धोया और वापस थोड़ी और हल्दी लगा दी, because I didn't want the bleeding to continue, so that also had to stop. क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये खून बहना शुरू रहे, तो उसके लिए मैंने हल्दी लगाई. And then I just believed that I'm healed. और मैंने विश्वास किया कि मैं पूरी तरह से चंगा हो गया हूँ. So in about 1 hour's time, 1 घंटे के समय में I had washed my hands of all the haldi that I had applied. तो मैंने वो जो हल्दी लगाई थी दूसरी बार उससे भी धोया, I had washed with soap as well. मैंने साबुन से भी धोया. And then another hour later, और 1 घंटे के बाद I couldn't make out which finger was hurt.
because I was wondering, did I open it with my right hand or did I open it with my left hand? अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने बॉटल कौन से हाथ से खोली थी, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, क्योंकि दोनों हाथ सेम दिख रहे थे. So I was comparing both my right and my left fingers, which was supposed to be hurt, and I couldn't make out any difference. तो मैं दोनों हाथ की दोनों उंगलियों को मैं कंपेयर कर रहा था, लेफ्ट राइट की कौन सी वाली थी जिस पे कांच लगा था, क्योंकि दोनों सेम दिख रही है. There was no cut, there was no scar. उस पे कोई निशान भी नहीं था कट का कि कांच घुसा था यहाँ पे. So I couldn't even remember which finger it was. Was it my right hand finger or was it my left hand finger? तो मैं याद नहीं कर पा रहा था कि ये राइट हैंड था या लेफ्ट हैंड था. That was the extent to which I received the healing. तो इस हद तक मैंने चंगाई पाई है, देखी है, That within 2 hours there was no trace of any wound. कि 2 घंटे में उस जख्म का नामो निशान मिट गया था. I can give you many such examples मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ ऐसे, because then I started believing that pain is not for me. क्योंकि तभी मैंने विश्वास करना शुरू किया कि दर्द जो है वो मेरे लिए नहीं है. And not just me but also for my family. सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए भी. So I can give you examples of even my family members experiencing something which should have been painful but zero pain. मैं ऐसे भी उदाहरण आपको दे सकता हूँ मेरे परिवार में जहाँ पे लोगों को दर्द हो सकता था लेकिन नहीं हुआ. And because of these experiences, और इन सारे अनुभव की वजह से my faith became more strong. मेरा विश्वास और मजबूत हो गया. So today if you ask me about pain, I'll say that you should never have any pain in your life. अगर आप मुझसे आज पूछते हो दर्द के बारे में तो मैं कहूँगा आपके जीवन में कोई भी दर्द नहीं होना चाहिए. I'm not just talking about physical pain. और मैं सिर्फ शरीर के दर्द के बारे में नहीं बोल रहा हूँ. I'm talking about all kinds of pain, even mental and even emotional pain. मैं शरीर के दर्द के अलावा बाकी दर्द के बारे में बात कर रहा हूँ जो मानसिक तौर पे होता है वो भी. So we are supposed to be living a life without all kinds of pain. तो हमें ऐसा जीवन जीना है जिसमें कोई भी दर्द ना हो. What happens when we are living such a life? और क्या होता है जब हम ऐसा जीवन जीने लगते हैं? We get excited to live this life. तो आप जीने के लिए खुश होते हो. We feel that we are like, there's a kind of protection over us, like, or there's a shield over us where the enemy comes to throw arrows upon us, but it doesn't even touch us. और तब हम ऐसा जीवन जी रहे होते हैं और महसूस करते हैं कि इस जीवन में मेरे आजू बाजू एक कवच है जिसे शत्रु तोड़ नहीं पा रहा है, जिसके द्वारा कोई भी चीज़ अंदर आ नहीं पा रही है. Now remember I talked about the spiritual realm. तो मैंने आत्मिक जगत के बारे में बात की थी. So yes, there is God operating in the spiritual realm. तो ये बात सच है कि परमेश्वर आत्मिक जगत में काम करते हैं. But there are also evil forces operating in the spiritual realm. लेकिन उसी के साथ आत्मिक जगत में जो दुष्ट शक्तियां हैं वो भी काम करती है. But this is the joy that we have, is that we do not have to be afraid of the evil forces. लेकिन खुशी की बात यह है कि हमें उन दुष्ट शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है. Satan is defeated. शैतान हारा हुआ है. Jesus gave us that victory over Satan. यीशु ने हमें शैतान के ऊपर जय दे दी है. And because of that, we can live this kind of a life which is not just a physical, natural life, but a supernatural life. और उसी विजय के कारण हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जो विजयशाली जीवन है, जिस जहाँ पे हमने सारी बातों पे जय पा लिया है. So that is why I want to encourage each and every one इसलिए मैं सबको एनकरेज करना चाहूँगा that we need to start stepping out of the physical realm and getting into the spiritual realm. इसलिए हमें आत्मिक शारीरिक जगत से निकल के आत्मिक जगत में जीना शुरू करना है. But that starts with our imagination first. लेकिन इसकी शुरुआत हमारी कल्पना से होती है. If we have no knowledge of the spiritual realm, अगर हमें आत्मिक जगत के बारे में कुछ भी पता नहीं है we'll never go to those places. तो हम उस जगह पे कभी जा ही नहीं पाएंगे. But when we extend our imagination into the spiritual realm, लेकिन जब हम हमारे कल्पना को आत्मिक जगत में ले जाते हैं, that's when we start reading through the word of God, God's plan for us, we start opening ourselves up to those plans. लेकिन ये तब होता है जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, प्रभु की योजना क्या है हमारे लिए ये समझने लगते हैं, तब हम उस जगह पे जाना शुरू करते हैं. For example, if God prophesies through a person that you will be wealthy, अगर परमेश्वर एक व्यक्ति पे भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हें बहुत दौलत मिलने वाली है, and even though your bank balance may be zero, और उस समय उस व्यक्ति का बैंक बैलेंस जीरो है, कुछ पैसा नहीं है, but
we limit ourselves through our imagination in the physical realm, लेकिन हम हमारी कल्पना के द्वारा हम खुद को सीमित कर लेते हैं and we are not opening our imagination into the spiritual realm. और हम हमारे कल्पना को आत्मिक जगत में नहीं खोलते। So that is a truth being declared to you from the spiritual realm, तो ये जो सच्चाई है ये आपको आत्मिक जगत से बताई जा रही है, but you have closed your eyes to that realm. लेकिन आपने उस सच्चाई के लिए अपनी आंखों को बंद किया हुआ है And you're only opening your eyes into the physical realm and seeing what is the truth over there. और आप अपनी आंखों को सिर्फ इस दुनिया के लिए ही खोलते हो और इस दुनिया में क्या हो रहा है, आपकी परिस्थिति क्या है, आप उसी को देख रहे हो। But we need to open our spiritual eyes and see what's the truth in the spiritual realm. लेकिन हमें हमारी आत्मिक आंखों को खोलना है और देखना है कि आत्मिक जगत में क्या है। And faith will carry the thing that is the truth in the spiritual realm into the physical realm. और विश्वास जो है वो आत्मिक जगत की सच्चाई को शारीरिक जगत में आपके लिए ले आएगा। And that is the most important thing to be understood. और ये सबसे ज़रूरी बात है समझने के लिए That there are spiritual truths कि वह आत्मिक सच्चाइयाँ है which is there, which we can access through the word of God, और इन आत्मिक सच्चाइयों को हम प्रभु के वचन के द्वारा जान सकते हैं but they can be made manifested into the physical realm और वो शारीरिक जगत में प्रकट हो सकती है through faith. विश्वास के द्वारा। That's why faith is such an important thing. इसीलिए विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है See, God's grace has made the provision for us. कि प्रभु का जो अनुग्रह है उसने ये सारी बातें हमारे लिए उपलब्ध करा दी गई है। He has great plans for you. प्रभु के आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। He has provided everything for you. प्रभु ने आपके लिए सब कुछ दे रखा है। Now it's not a life of striving. अब आपका जो जीवन है वो बहुत कड़ी मेहनत वाला नहीं है, It is an effortless life, वो एक आसान जीवन प्रभु ने आपके लिए रखा है, but to be lived by faith. लेकिन ये जीवन आपको विश्वास से जीना होगा Because faith accesses the grace that is given. क्योंकि विश्वास जो है वो अनुग्रह को पाता है जो प्रभु ने दिया हुआ है। God is the giver and the source. प्रभु देने वाला है, प्रभु स्रोत है The medium that He gives through is His grace. और जिस माध्यम से प्रभु हमें ये चीज़ें देता है वो है उसका अनुग्रह And we can receive that through faith. और उनको लेने का जो माध्यम है वो होता है विश्वास। It's just like there is electricity all around, ये इस तरह है कि सब तरफ बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, but just because there is electricity doesn't mean every bulb will start glowing. क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का हर एक बल्ब जलेगा। We need to switch on the bulb. आपको उस बल्ब का बटन ऑन करना पड़ता है, That's when we see the effect of that electricity. तब जाके आप उस बिजली का अनुभव कर सकते हो, तब जाके वो बल्ब जलता है। So we need to switch on our faith इसलिए हमें हमारे विश्वास को चालू करना है to access the grace. कि हम उस अनुग्रह को पा सके And that's when we start seeing the grace in our life. और उस समय से हम हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह देखने लगेंगे It is effortless. और ये बहुत आसान है। If you are striving for it, means you are doing something wrong. अगर आपको इसमें मेहनत करना पड़ रहा है तो आप ज़रूर कुछ गलत कर रहे हो। Now, don't mistake me when I say effortless. और जब मैं कह रहा हूँ एफर्टलेस या किसी भी मेहनत के बिना, तो मुझे गलत मत समझिए। It doesn't mean we have to be lazy. इसका मतलब ये नहीं कि हमें आलसी बनना है। God wants us to be active. प्रभु चाहता है कि हम एक्टिव रहे And in order for us to be active, there are certain things He has provided for us. और विश्वास में एक्टिव रहने के लिए प्रभु ने कुछ बातें हमें दी है which we can access through our faith. और इन बातों को हम विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। And as we access this through faith, और जैसे ही हम इन बातों को विश्वास से पाते हैं we get freed up from putting effort in those areas. तो हम उन सारे भागों में मेहनत करने से हम पीछे हो जाते हैं, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। So do you know why God frees us from that effort? तो क्या आप जानते हैं कि प्रभु आपको उस मेहनत से क्यों बचाता है? He wants us to put our effort somewhere else. क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उस मेहनत को, उस एफर्ट को किसी और जगह पे लगाएं। And that's in spreading His word. और वो मेहनत है उसके वचन का प्रचार करने के लिए, That's in being the light. और वो मेहनत हमें लगानी है इस दुनिया का प्रकाश बनने के लिए। Over here also, when we put our efforts, यहाँ पे भी जब हम मेहनत करते हैं, we are not toiling. हम बहुत कड़ी मेहनत नहीं कर रहे, परिश्रम नहीं कर रहे।
It is we do what is needed to be done हम वो सब करते हैं जो करने की ज़रूरत है, so that we are not lazy, ताकि हम आलसी ना बने। but God brings the results. लेकिन प्रभु जो है, प्रभु ही रिजल्ट लाता है। So if we are not active, like let's say if we are lazy, अगर हम एक्टिव नहीं है, हम आलसी बन गए हैं, things will not happen. तो चीज़ें नहीं होगी। Like for example, if somebody is sick, that person will remain sick. इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर बीमार है और वो अगर एक्टिव नहीं है तो बीमार ही रहेगा। But if we can be an instrument in God's hand, लेकिन हम प्रभु के हाथ में एक हथियार बन सकते हैं। God will not use us if we are just lying down on our bed. प्रभु हमें तब इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अगर हम हमारे घर में आराम से बैठे हैं, लेटे हैं। God wants you to get up, go to that person, pray for that person. प्रभु चाहता है कि आप जाएं उस व्यक्ति के पास और उसके लिए प्रार्थना करें, God will heal that person. और प्रभु उस व्यक्ति को चंगा करेगा। Your prayers is just the channel through which God will work. आपकी प्रार्थना सिर्फ एक माध्यम है जिसके द्वारा प्रभु उसके जीवन में कार्य कर पाएगा। And that's how God wants to use each and every one of us. और ऐसे ही प्रभु हम में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। There's no special privileges for certain people and others will not have those privileges. ये ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोग ही है ये काम कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। It's just a very simple understanding ये एक काफी साधारण सी समझ है that God has provided for everything through His grace. कि प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा सब कुछ दे दिया है, Any person can receive that through faith. और कोई भी व्यक्ति उस सारी बातों को जो प्रभु ने दी है हमें विश्वास के द्वारा पा सकता है। And because there is lack of faith in people, और क्योंकि लोगों के बीच में विश्वास की कमी है, you can be a person whom God can use in other people's lives. इसीलिए प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए। So each and every one of us here sitting, तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो बैठा है and everyone online who is listening, और वो सारे लोग जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, God wants to use you. प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, Not just for yourself, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, and not just for your family, और सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं, but everyone in this world. लेकिन इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। You can be an instrument in God's hand. आप प्रभु के हाथ में एक इस्तेमाल वाली चीज, एक हथियार बन सकते हो। All that you have to do is be active in your faith. आपको सिर्फ यही करना है कि आपके विश्वास में आपको एक्टिव रहना है, तैयार रहना है। Again, I want to remind you that there is no toiling and no striving, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, but also there is no laziness. लेकिन आलसी भी नहीं बनना है। So it is that you be active. कि आपको एक्टिव रहना है, तैयार रहना है। Like if a car is in neutral, कि जैसे कि कार होती है वो न्यूट्रल गियर में है, you cannot take it forward much. अगर न्यूट्रल कार है तो उससे आप आगे नहीं ले जा सकते। After some time it will have to stop if it's already moving. अगर वो चल भी रही है थोड़ी देर के लिए तो वो रुक जाएगी। But if you put it in gear, लेकिन अगर कार में आप गियर लगाते हो you can move a lot ahead. तो उस कार को आप काफी आगे ले जा सकते हो। If you put it in reverse, अगर आप उसे रिवर्स गियर में डालोगे you won't go forward. तो आप आगे नहीं जा पाओगे, You will go backwards. आप पीछे जाओगे। So you decide what you want to be. Do you want to be moving forward? तो आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे जाना है, Do you want to be stuck in the same place क्या आपको उसी जगह पे रहना है, or want to go backwards? या फिर आपको पीछे जाना है। That's up to you. वो आप पे निर्भर करता है। So accordingly you put your vehicle in that gear. उस हिसाब से आपको गियर लगाना पड़ेगा। And that's what I mean about your spiritual life. इसका मतलब है आपका आत्मिक जीवन वैसे होना चाहिए। You can either move forward, या तो आप आगे जा सकते हो, you can be stuck in a place, या फिर आप उसी जगह पे रह सकते हो, or you can be going backwards, या फिर आप पीछे जा सकते हो, which is against God. जो प्रभु की इच्छा नहीं है। So today I just want to pray for each and every one of us here seated. तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। And it would be good if you can close your eyes. बेहतर होगा कि अगर आप अपनी आंखों को बंद करें। And what I want you to do is again just picture yourself in front of God. मैं चाहता हूँ कि आप खुद की कल्पना कीजिए कि आप परमेश्वर के सामने खड़े हो। You are standing in front of God आप परमेश्वर के सामने खड़े हो and you are having this hunger in your heart और आपके दिल में वो भूख है and you are asking God that, you know,
enlighten me with all the truths from the spiritual realm. और आप प्रभु से पूछ रहे हो, मांग रहे हो कि प्रभु मुझे अपने ज्ञान का प्रकाश दे तेरी हर सच्चाई के बारे में जो आत्मिक जगत में है। Heavenly Father, I pray for each and everyone listening to this, पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो मेरी बात को सुन रहा है, that your spirit will work in their hearts, कि आपकी आत्मा उनके जीवन में, उनके हृदय में काम करेगी and open up their minds और उनके मनों को खोलेगी to receive what you have provided for. ताकि वो प्राप्त कर पाए जो भी आपने उनके लिए दिया है। First of all, I pray for your love to be rooted in their heart, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके प्रेम के लिए कि आपका प्रेम उनके हृदय में जड़ पकड़े, that they know that they are loved by you immensely, ताकि वो जान पाए कि वो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, so much that it's a privilege to receive your love. इतना ज़्यादा आप प्रेम करते हो कि आपका प्रेम पाना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। And not just the love, but also the truth of your word. सिर्फ प्रेम ही नहीं, लेकिन आपके वचन की सच्चाई, Because your word will set them in the right direction. क्योंकि आपका वचन उनको सही दिशा में ले जाएगा। And as they walk into the right direction, और जैसे वो सही दिशा में जा रहे हैं, they will have a deeper relationship with you. उनका आपके साथ एक गहरा रिश्ता बनेगा। So all of us gathered here, we are being called closer and closer to God. और हम हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है, हम प्रभु के करीब जा रहे हैं, And knowing His intimate love for us. और ये जान के कि उसका जो प्रेम है हमारे लिए वो बहुत करीबी है, Because you have plans for each and every one of us. क्योंकि आपकी योजनाएं हैं हम में से हर एक व्यक्ति के लिए। Open our minds, Lord, प्रभु हमारे मनों को खोलिए to know the direction that you are leading us into, ताकि हम जाने कि वो उस दिशा को जाने, उस दिशा में आप हमें ले जाना चाहते हैं, and that we may walk in the right way ताकि हम सही मार्ग पे चले and be instruments in your hand. और आपके हाथों में एक हथियार बने। And Lord, we know that we will be fruitful as we walk in your path. और प्रभु मैं जानता हूँ कि हम जैसे आपके मार्ग पे चलेंगे हम फलवंत होंगे, And that is your command for us to be fruitful. और यही आपकी आज्ञा है कि फलवंत हो। So help us, Lord, to receive this understanding, तो प्रभु हमारी मदद कीजिए कि हम इस समझ को पाए, receive wisdom कि हम बुद्धि को पाए that comes from you, जो आपसे आती है, and live this life और इस जीवन को जिए in this wisdom and knowledge, इसी ज्ञान और बुद्धि में, and being fruitful for you. और आपके लिए फल लाए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen.